اسرائیل نے نئی جنگ چھیڑ دی، ایران پر فضائی حملہ، ایرانی آرمی چیف جنرل باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل سلامی شہید، سینئر کمانڈر جنرل غلام علی رشید، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر تہرانچی، ڈاکٹر فریدون عباسی نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں لیفٹیننٹ جنرل قرنی، سیاد شیرازی سمیت دیگر شامل۔ میجر جنرل عبد الرحیم موسوی آرمی چیف اور بریگیڈیئر جنرل محمد پاکپور کو پاسداران انقلاب کے کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ حملے میں ایران کی جوہری اہداف سمیت درجنوں فوجی اہداف شامل۔ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملے، تہران کے متعدد رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تبریز، شیراز اور ہمدان میں بھی حملوں کی تصدیق۔ اسلامی پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس فورس کے سربراہ امیر علی حاجی زادہ کی شہادت کا اعلان۔ بریگیڈیئر جنرل مہدی ربانی بھی اہلیہ اور بچوں سمیت اسرائیلی حملے میں شہید۔ فضائی دفاعی جنرل داؤد شیخانی بھی حملے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ جنرل محمد باقری کی صاحبزادی فرشتے باقری کی شہادت کی تصدیق۔ ایران کے اعلیٰ فوجی عہدیداران کی شہادت پر ایرانی قوم سوگوار۔ ایران نے اسرائیل کے حملوں کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز حملے کر دیے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے ایران کے حملے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا رد عمل سامنے آ گیا۔ سید علی خامنہئی نے کہا، صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین کے خلاف گھناؤنا کام انجام دیا ہے، اسرائیل کا انجام بہت برا ہوگا، سائنسدانوں کے جانشین ان کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا، ایران جوابی حملے کا حق رکھتا ہے، اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ، ایران کا ممکنہ سخت رد عمل۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع زیر زمین ہیڈ کوارٹرز میں چلے گئے۔ اسرائیل کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اسرائیلی شہریوں کو بم شیلٹرز اور بنکرز کے قریب رہنے کا مشورہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی شہریوں کا بنکرز میں قیام طویل بھی ہو سکتا ہے۔ نیتن یاہو کی سربراہی میں اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بھی طلب۔ اسرائیل کا فلائٹ آپریشن معطل، ہزاروں اسرائیلی شہری دوسرے ممالک میں پھنس گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی صدر کو حملے کے حوالے سے ایک ہفتہ قبل ہی بتا دیا گیا تھا اور اس پر بات چیت بھی جاری تھی۔ اسرائیلی فوج کی ایران پر حملے کی تفصیلات جاری۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا، ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا، 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اگلے چند گھنٹے ہمارے لیے مشکل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے 5 مرحلوں میں حملہ کیا، ایران کے 8 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملہ دارالحکومت تہران اور اس کے اطراف کی فوجی تنصیبات پر کیا گیا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی، دنیا بھر میں فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ۔ خبر رساں ادارے کے مطابق دنیا کے اہم ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن متاثر، خلیجی ممالک یہاں پروازیں منسوخی اور تاخیر کا شکار۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائنز نے تل ابیب، عراق، اردن، لبنان اور ایران سے آنے اور جانے والی پروازیں معطل کر دی۔ بھارت اور شام کا فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ ایران اسرائیل کا فلائٹ آپریشن بند ہے۔ تل ابیب میں ایران کے جوابی حملے کے پیش نظر جہاز محفوظ مقام پر منتقل۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کھلی دھمکی۔ کہا، تہران کو امریکہ کے ساتھ فوری طور پر معاہدہ کرنا ہوگا، بصورت دیگر حالات مزید خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ امریکہ دنیا کے سب سے جدید اور تباہ کن ہتھیار بناتا ہے، اسرائیل کے پاس یہ ہتھیار موجود ہیں اور وہ ان کا استعمال کرنا بھی جانتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران امریکہ کے بالواسطہ ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ۔ ایران میڈیا کے مطابق ایران نے اتوار کے روز عمانی ثالثی میں ہونے والے جوہری مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ عمان نے اسرائیلی حملوں کو لاپرواہی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان حملوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں۔ صدر مملکت کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ کہا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم کا انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی۔ کہا کہ ایران پر حملہ غیر مستحکم خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ سے جنگ روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ It has now led Israel to attack another sovereign Muslim state, Iran. This House jointly and unequivocally condemns Israel and its heinous crimes against Muslim Ummah,
especially against brotherly nations of Palestine and Iran. This House stands resolute with our Iranian brothers and sisters and supports their right to defend themselves against this aggression. सेनेट इजलास इसहाक डार का रिएक्शन, ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ मजम्मत करारदाद मंजूर। वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। इसराइल ने हमारे ब्रदर मुल्क पर हमला किया है। पाकिस्तान ईरानी हुकूमत अवाम से यकजहती का इजहार करता है। इसराइल ने UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा का फर्ज है इसराइली हमले का नोटिस लें। ये हमला ईरान के खुद मुख्तारी पर भी हमला है। अयाज सादिक ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। इजराइल को रियासत नहीं मानते, हम नहीं मानते ना जी। वो जिन्होंने माना हुआ उनके लिए अर्ज कर रहे हैं, मगर हमारे लिए पाकिस्तान के लिए रियासत नहीं, हमारे लिए तो रियासत है ही नहीं ना जी। हम तो उसको तस्लीम, हमारे लिए दहशतगर्दी है। बिल्कुल। ईरान पर इसराइली हमले के बाद आलमी बिरादरी में शदीद तशवीश की लहर। सऊदी अरब ने मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली और मईशत को लाहक खतरात पर तशवीश जाहिर की। तुर्किया का जंगबंदी पर जोर, अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम फरीक़ैन से ज़ब्त और फौरी मुज़ाकरात की अपील। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सूरत हाल को ख़तरनाक करार देकर फरीक़ैन से तसादुम से गुरेज की हिदायत। बरतानिया की भी कशीदगी कम करने की दरख्वास्त। जापान ने शहरियों की हिफाजत की अव्वलीन तरजीह करार देते हुए सिफारती हल पर जोर दिया। इसराइली जानहित के खिलाफ ईरान भर में गम और गुस्सा। तेहरान और क़ुम में लाखों शहरी सड़कों पर आ गए। मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी हज़ारों शहरियों का एहतजाज। इसराइल के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल का मुतालबा। क़ुम में वाक़े मस्जिद जमकरान पर इंतकाम का सुर्ख परचम लहरा दिया गया। जमहूरिया ईरान पर हमला किया है, ये खुली जारियत दहशतगर्दी है और तमाम तर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ये चाहता है कि मशरिक़ वस्ता में सिर्फ एक ही ऐसी वाहिद रियासत है इसराइल जो रहे जिसकी बालादस्ती पूरे खित्ते पर कायम रहे और वो जब चाहे जहाँ चाहे वो बदमाशी करे, गुंडागर्दी करे और मासूम इंसानों का कत्लेआम करे। ईरान पर हमले के पीछे अमरीका है। जनरल सेक्रेटरी फ़लस्तीन फाउंडेशन डॉक्टर साबिर अबू मरियम की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि अमरीकी हुकूमत चाहती है इसराइल को खुली छूट दी जाए, ईरान इसराइल को भरपूर जवाब देगा। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा ईरान को फ़लस्तीन की हिमायत की वजह से सज़ा मिल रही है। ईरान पहला मरहला है, अगले मरहले में पाकिस्तान भी हो सकता है। वक्त आ गया है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को इसराइल के खिलाफ खड़ा होना होगा। ईरान को जो सजा मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन की हिमायत की वजह से, हमास की सरपरस्ती की वजह से। आज का हमला सिर्फ ईरान पर हमला नहीं है, ये पाकिस्तान पर भी हमला है, सऊदी अरब पर भी हमला है और ये ग्रेटर इसराइल की तरफ उनके पेशकदमी है जिसके रास्ते में ईरान बहुत बड़ा रुकावट था। मैं समझता हूँ कि रंग, नस्ल, मसलक से बालातर होकर पूरे आलमी दुनिया को अब ईरान का साथ देना चाहिए। ईरान पर इसराइली जानहित के खिलाफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन का एहतजाज। मजलिस वहदत मुस्लिमीन सिंध के सदर मौलाना सैयद बाकर अब्बास जैदी की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ नारे। शुरा ने कहा इसराइली हमला ईरानी सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ और आलमी जंगी जराइम है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट ऑयल की कीमत $75.65 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI तेल $6.43 इजाफे से $74.47 पर आ गया। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में 12% इजाफा देखा गया। सेहोनी जुल्म की एक और शर्मनाक मिसाल। कोरोना के बाद पहली बार मस्जिद अक्सा के तमाम दरवाजे बंद। इसराइली अफवाज ने मुकद्दस मुकाम को नमाजियों से जबरदस्ती खाली करा दिया। इबादत गुजारों को धक्के देकर बाहर निकाला गया जिस पर फलस्तीनी हलकों में शदीद रद्द अमल। बैतुल मक़दस में सूरत हाल इंतहाई कशीदा। आलमी बरादरी बदस्तूर खामोश तमाशाई बनी हुई है। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया में शदीद गम गुस्सा। सिंध का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला सिंध ने बजट पेश किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 12% एड हॉक रिलीफ अलाउंस मिलेगा। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन को 10% एड हॉक रिलीफ दिया जाएगा। माजूर मुलाजमीन के लिए कन्वेंस अलाउंस में इजाफा। वज़ीर आला सिंध का तालीम और सेहत के बजट में नुमायां इजाफे का ऐलान। तालीम का बजट कुल अखराजात 25.3% होगा। प्राइमरी तालीम के लिए 156.2 अरब और सेकेंडरी तालीम के लिए 77.2 अरब मुख्तस किए गए हैं। सेहत के शोबे के लिए 326.5 अरब रुपए रखे गए हैं। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के लिए 19 अरब और लाड़काना में नए अस्पताल के लिए 10 अरब शामिल हैं।
civilian empowerment infrastructure, 31 police stations launched, 3.7 billion devolved directly to police stations, SHOs and sub-investigation officers designated as drawing and disbursement officers for localized decision making. वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, अपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा, ऐवान मछली बाजार में तब्दील। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि ये बजट सिंध का नहीं वडेरा शाही का बजट है, सिर्फ जागीरदारों वडेरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। बजट में शहरी सिंध को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया है। सिंध हुकूमत का माली बोझ कम करने के लिए 5 महसूलात खत्म करने का ऐलान। सिंध में प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मोटर व्हीकल टैक्स में कमी हो रही है, सेल्स टैक्स को आसान बनाने के लिए नेगेटिव लिस्ट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। वकला, सहाफ़ियों और अक़लियतों के लिए फलाही तरक्याती इक़दामात की मद में खुसूसी ग्रांट्स भी फराहम की जाएंगी। आइंदा माली साल के बजट में ज़राई इस्लाहात पर खास तवज्जो दी जाएगी। 2 लाख से ज़ायद किसानों को सब्सिडी, जदीद मशीनरी के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड का इजरा किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने सूबे का आज तारीखी बजट पेश किया है। सिंध हुकूमत ने बजट में अवाम को मुकम्मल रिलीफ देने की कोशिश की। एहतजाज अपोजिशन का जमहूरी हक है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि महंगाई के दौर में जितना रिलीफ दे सकते थे दिया। खैबर पख्तूनख्वा का सरप्लस बजट पेश। बजट का हजम 2118 अरब रुपए रखा गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कम से कम माहाना उजरत 36,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 547 अरब रुपए की तजवीज़ है। तालीम, सेहत और ज़राअत के हवाले से इनकलाबी इक़दाम उठा रहे हैं। वफाक की जानिब से सूबे को 1576 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान आम चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप भी आम के ख्वाह हैं। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सदर का ट्वीट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। लिखा, नरेंद्र मोदी की हुकूमत जंग चाहती है। यूरोपियन पार्लियामेंट में अहम रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद गुफ्तगू। कहा कि भारत की पूरी कोशिश है कि ट्रंप अपने मौक़िफ़ से हटें, लेकिन हम सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि वो आम के साथ खड़े हैं। यूएन जनरल असम्बली ने गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। 149 ममालिक ने हिमायत और 12 ने मुखालिफत की। 19 मुल्कों ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में इसराइल में कैदी फौजियों की वापसी और गजा से फौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा किया गया। हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई का भी मुतालबा। भारत में तबाह एयर इंडिया के बोइंग 787 का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया, दूसरे की तलाश जारी। हादसे में अमले के 12 अरकान समेत 240 मुसाफिर हलाक हुए। खुशकिस्मती से एक मुसाफिर जिंदा बच गया। तैयारा गिरने से हॉस्टल तबाह हुआ। हादसे में मजमूई तौर पर 290 अफराद हलाक हुए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का फ़ज़ाई हादसे के मुआयने के लिए टीम भारत भेजने का ऐलान। महकमा मौसमियात ने बालाई सिंध के तमाम अजला में आंधी और बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध के तमाम अजला में आंधी और बारिश का इम्कान है, जबकि झक्कड़ चलने और बारिश से गर्मी की लहर में भी कमी होगी। आज शाम से 16 जून तक पंजाब, केपी, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित में बारिश की पेशगोई की गई है। और लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सनसनीखेज मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 8 विकेटों पर 144 रन बनाए और मजमूई बढ़तरी 218 रन तक पहुंचा दी। बॉलर्स दूसरे दिन भी हावी रहे। पैट कमिंस ने 6 शिकार किए। जनूबी अफ्रीका 138 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 74 रन की बढ़तरी मिली।